تو یہ سب کے سامنے آیا ہے. سب جانتے ہیں کہ یار یہ چور ہیں, چور آئے ہوئے ہیں. تو جب تک یہ کرسی پر ہوں گے اس ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا, ملک کا بیڑا غرق ہوتا رہے گا. میں صرف واحد حل کرنے کا واحد حل صرف اور صرف عمران خان ہے, اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ خان اگلے الیکشن میں پھر آئے گا, کیونکہ سب سمجھتے ہیں ڈیزل. ہاں, میں یقین کے ساتھ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہمارے یہاں دیواروں پہ بلوچستان میں بیسیکلی بلوچستان سے تعلق رکھتا ہوں, تو بلوچستان میں وہ وال چاکنگ ہوتی نہیں ہے الیکشن کیمپین کے لیے, وہاں پر وال چاکنگ میں کلیئرلی انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ کتاب کو ووٹ دو, ٹکٹ کی ذمہ داری ہماری, جنت کے ٹکٹ کی ذمہ داری ہماری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, چینل دی واچ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اعجاز واصل, اور آج آپ کو مہنگائی سے ماری ہوئی عوام کی روداد سنانے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا بھائی؟ ذیشان. اچھا ذیشان بھائی, مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو پچھلی حکومت تھی عمران خان کی پی ٹی آئی, اور جو ابھی پی ڈی ایم کی حکومت ہے, اس میں مہنگائی تو بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آپ کی کیا رائے ہے کہ دونوں میں سے کون سی حکومت صحیح لیڈ کر رہی تھی؟ دیکھیں نا, آپ خود دیکھیں کہ عمران خان جب تھا 5 روپے پیٹرول پڑتا تھا, یہ لوگ بولنے آ جاتے تھے کہ پیٹرول بڑھ گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. اب یہ لوگ 30 روپے کر کے 3 دفعہ پیٹرول بڑھا چکے ہیں. مہنگائی میں عام بندہ کہاں گزارا کرے اپنا؟ ہم لوگ چلو پھر تھوڑا کر لیتے ہیں, جو دیہڑی در مزدور ہے وہ کہاں جائے گا بیچارہ؟ اس نے اپنے گھر میں راشن بھی کروانا ہے, اس نے اپنے گھر میں اور بھی ضروریات, اپنے بچوں کو بھی پیسے دینے ہیں, وہ بیچارہ کہاں جائے گا؟ یہاں پر آ جاتے تھے بولنے کے لیے ڈالر کا ریٹ, ڈالر بڑھ رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. اب ڈالر 208 روپے پہ گیا ہوا ہے. مہنگائی میں بندہ کہاں جائے؟ ڈالر مہنگا ہو رہا ہے, ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے. غریب کے لیے 2000 جو دے رہے ہیں وہ گھر نہیں چلا سکتا. غریب کے لیے 2000 دے رہے ہیں, یہ اب 2000 آگے جس طرح بول رہے ہیں نا کہ 2000 ہم دے رہے ہیں, وہ عمران خان 12000 روپے دے رہا تھا. یہ لوگ 2000 اس طرح 2000, جہاں آپ 20000 کی مہنگائی کرو گے وہاں 2000 غریب بندہ کیا کرے گا اس میں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا بھائی؟ میرا نام ثناء اللہ ہے. اچھا ثناء اللہ بھائی, آج کل مہنگائی کے حوالے سے آپ کا کیا اوپینین ہے, اور پچھلی حکومت کی نسبت اس حکومت کو آپ کیا رینک دے رہے ہیں؟ دیکھیں, جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے اور اس حوالے سے اگر میں کہوں تو سب کو پتہ ہے کہ پچھلی حکومت میں بھی, عمران خان کی حکومت میں بھی مہنگائی تھی, لیکن وہ اتنی نہیں تھی کہ اس کے نیچے غریب کو کچلا جا سکے اور غریب کی زندگی جینا حرام کر کیا جا سکے, اور بالکل غریب کو جینے کا حق ہی نہ دیا جا سکے اس میں. اب یہاں پر آپ پیٹرول کی قیمتیں دیکھتے ہیں اور گھی کی قیمتیں دیکھتے ہیں اور دوسرے اس طرح کے خوردنوش کے اشیاء, ان کی قیمتیں آسمان تک جا پہنچی ہیں. تو یہ تو عمران خان یہ وویلا مچا رہے ہیں کہ یہ عمران خان نے معاہدے کیے تھے, یہ وہ سارا سین صحیح ہے. تو یہ سب کے سامنے آیا ہے, سب جانتے ہیں کہ یار یہ چور ہیں, چور آئے ہوئے ہیں. تو جب تک یہ کرسی پر ہوں گے اس ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا, ملک کا بیڑا غرق ہوتا رہے گا, اور یہ اپنی جیبیں بھرتے رہیں گے, اپنے خزانے بینک کے لوٹتے رہیں گے پاکستان کے. تو آپ کو کیا اب حل کیا نظر آ رہا ہے پاکستان کا؟ حل تو میرے نظر میں صرف واحد حل, جو پہلے بھی میری رائے تھی, پہلے بھی میں اس پہ مطلب یہی مانتا تھا کہ اس ملک کو ٹھیک کرنے کا واحد حل صرف اور صرف عمران خان ہے. جب تک یہ بندہ, جیسے پچھلی حکومت میں ہم نے سب نے دیکھا کہ کس طرح یہ اب مافیا کے ساتھ ڈٹ کے سامنے اکیلا کھڑا ہوا تھا نا, تو مجھے یہی لگتا ہے, مجھے یہی سلوشن نظر آتا ہے کہ صرف واحد عمران خان اس سارے مسئلے کا حل ہے, اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ خان اگلے الیکشن میں پھر آئے گا, اور یہ جتنے بھی مسئلے مسائل انشاءاللہ ان سب کو ٹھیک کر کے چھوڑے گا انشاءاللہ. پی ڈی ایم کہہ رہی تھی کہ یہ ملک دشمن ہے یا پھر ملک کو بیچنے کا کر رہا ہے, تو یہی دیکھیں نا, اب پی ڈی ایم کہہ رہی ہے کہ ملک دشمن ہے اور یہ ملک لوٹ رہے ہیں. اب دیکھو پی ڈی ایم کہاں ہے. اب کل میں نیوز سن رہا تھا, مولانا فضل الرحمان کا بیٹا جو بجٹ منظور ہو رہا تھا, پیش ہو رہا تھا, وہ ساتھ بیٹا ہوا تھا, اور یہ اسلامی نعرے لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے, مہنگائی مکاؤ مارچ انہوں نے شروع کیا تھا. تو کل میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا جس میں انٹرویو نہیں بلکہ وہ چل رہا تھا نا, بجٹ جب منظور ہو رہا تھا, اس میں سنیما کو بالکل فری منظوری دی گئی ہے, مطلب کہ سنیما وداؤٹ ٹیکسز, مطلب فری وہ لانچ ہو سکتے ہیں ابھی. تو اس پر وہ مولانا فضل الرحمان, جو دوسرا نام جو آپ سب کے ذہن میں رہا ہے, میں نہیں کہنا چاہتا کیونکہ سب سمجھتے ہیں, ڈیزل. ہاں ڈیزل. تو ڈیزل کا بیٹا ادھر بیٹھا ہوا تھا, اور وہ کیونکہ ہمارے اسلام کے ٹھیکیدار ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جنت کا ٹکٹ ہمارے پاس ہے. میں یقین کے ساتھ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہمارے یہاں دیواروں پہ بلوچستان میں بیسیکلی بلوچستان سے تعلق رکھتا ہوں, تو بلوچستان میں وہ وال چاکنگ ہوتی نہیں ہے الیکشن کیمپین کے لیے, وہاں پر وال چاکنگ میں کلیئرلی انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ کتاب کو ووٹ دو, ٹکٹ کی ذمہ داری ہماری, جنت کے ٹکٹ کی ذمہ داری ہماری. تو ہاں, جب وہ ٹکٹ جنت کے ٹکٹ دینے کی ذمہ داری خود کو سمجھتے ہیں, ظاہر بات ہے وہ جنت کے ٹھیکیدار بھی ہوئے. السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ یاسر. اچھا یاسر, یہ بتائیے گا گزشتہ 3 ہفتے کے اندر پیٹرول کی قیمت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے, آپ کی جو زندگی ہے اس کے اوپر کیا اثرات پڑے ہیں؟ یار اس مہنگائی کے بارے میں کیا کہنا ہے. پچھلے دنوں میری برتھ ڈے تھی تو پیسے اکٹھے کر رہا تھا, 500 اکٹھا کیا ہے. اس کے بعد ایسا ہوا ہے کہ جیسے میں نے گھر سے بائک نکال لیا ہے تو بائک کے اپنا راستے کے اندر پیٹرول ختم ہو گیا.
मुझे नहीं पता था कि पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है। मैं पंप पे जा पेट्रोल डलवाया, उसके बाद जैसे ही दुकान पे गया अपना केक लेने बर्थडे का, तो उधर केक की भी वैल्यू बढ़ चुकी थी, तो इस वजह से मुझे केक नहीं मिला। ये बहुत बड़ा ही सदमा मिला है मुझे, क्योंकि अपना बर्थडे तो एक बार ही आता है साल के अंदर, कि महंगाई ने बहुत ज़्यादा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बढ़ गया है और इससे बहुत सदमा पहुंचा है। अच्छा ये बताएं कि आपका बर्थडे का दिन खुशी का दिन होता है इंसान का, तो खुशी का दिन आपका गम में तब्दील हो गया, इस पर हुकूमत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस शहबाज और नवाज़ हुकूमत को हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं, महंगाई कम करें और हमारी खुशियों के कातिल ना बने। इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका भाई? मोहम्मद अफजाल। अफजल भाई, जैसे कि हम जानते हैं कि रिकॉर्ड इन्फ्लेशन हुई है, बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है, और स्पेशली स्टूडेंट लाइफ आपकी कितनी मुतासिर हुई है? पिछली हुकूमत इमरान खान की निस्बत इस हुकूमत में आपकी स्टूडेंट लाइफ कितनी मुतासिर हुई है? आप क्या सोच रहे हैं आजकल? जी पहले तो ये था कि हम इधर आए यूनी में और हमें पता था कि ये फ़ीसें वगैरह कम हुई हैं, और जो पिछला इमरान खान का दौर था उसमें तकरीबन काफ़ी हद तक फ़ीसें कम थी। तो अचानक जब ये इनकी हुकूमत आई है तो फ़ीसें, पेट्रोल वगैरह हर चीज़ महंगाई हो गया है। पेट्रोल महंगा होने की वजह से उसके घी वगैरह हर चीज़ महंगाई हो गई है, तो ये ज़ाहिर बात है स्टूडेंट भी असर पड़ा, फ़ीसें अब दुगना करने की कोशिश कर रहे हैं। तो माँ बाप तो पहले ही हमारी बहुत मुश्किल से वो फ़ीसें वगैरह अफोर्ड कर रहे थे, तो जैसे ये पेट्रोल महंगा हुआ है और काफ़ी महंगाई हो जिसकी वजह से फ़ीसें भी दुगना हो गई है, तो काफ़ी हम वालिदैन भी हमारे पे काफ़ी बोझ पड़ रहा है, तो जिसकी वजह से हमें भी स्टडी करने में काफ़ी मुश्किल पेश आ रही है। और ये स्कॉलरशिप भी नहीं देते हमारा, क्योंकि BS इवनिंग में प्रोग्राम, इसमें कोई स्कॉलरशिप नहीं होती और फीसेस भी दुगना होती हैं, तो इसकी वजह से स्टूडेंट पे काफ़ी गहरा असर पड़ा है। और हम सुन रहे हैं कि ये जो स्कॉलरशिप पहले मिल रही थी वो भी हो सकता है चांसेस के ख़त्म हो सकती हैं। हाँ। तो और आप आजकल क्या सोच रहे हैं कि भाई आगे पढ़ना चाहिए या फिर पढ़ाई को यहाँ लीव कर देना चाहिए, क्योंकि स्कोप भी हम आजकल देख रहे हैं यहाँ पर? जी जिस तरह के हालात हैं इस तरह तो बनता है कि हम स्टडी छोड़ दें, क्योंकि घर के हालात देखें तो माँ बाप पे बहुत बर्डन पड़ रहा है, क्योंकि स्टडी करनी बहुत मुश्किल हो रही है स्टूडेंट के लिए। या ये हो सकता है कि पार्ट टाइम बंदा वगैरह कोई जॉब कर ले, तो जॉब भी यहाँ पे आपको पता है कि रुझान जॉब वगैरह कोई अब जॉब मिलना तो बहुत मुश्किल की बात है, बहुत कंपटीशन चल रहा है। तो यही है कि अब स्टडी भी कंटिन्यू करनी चाहिए, तो इसके साथ साथ कोई काम वगैरह भी हो, तो फिर ये वैसे तो इसका कुछ भी हल नहीं है। जी अफजल भाई बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे थे कि स्टूडेंट लाइफ इस वक्त बहुत ही मुश्किल में हो चुकी है। ना सिर्फ स्टूडेंट लाइफ बल्कि हॉस्टल की लाइफ भी, डेली खाना अफोर्ड करना, जहाँ पर एक्सपेंसेस 300 से 400 होते थे वहाँ से 800 से 1000 रुपये हो रहे हैं डेली रूटीन पर। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब क्या नाम है आपका? नईम बलोच। अच्छा नईम साहब, ये बताएं कि गुज़श्ता कुछ अरसे में महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, और जो बाकी बुनियादी चीज़ें हैं, ज़रूरत की चीज़ें हैं जो, उनकी कीमत भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, हम मानते हैं कि IMF के अंदर हमारा मुल्क जकड़ा हुआ है, उसकी वजह से सब्सिडीज़ को हमने ख़त्म करना पड़ा, लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत को एक अच्छी मईशत, बेहतर मईशत बनाने के लिए अच्छे प्लान की ज़रूरत है, लेकिन मुझे नहीं नज़र आता है कि हुकूमत के पास कुछ अच्छे प्लान हैं। अब महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके बदले में ना ही कोई रोज़गार के मौके फ़राहम किए जा रहे हैं, ना ही कोई ऐसी प्लानिंग की जा रही है जिसकी वजह से जो गरीब तबका है वो मज़ीद पिसे नहीं, गरीब तबका मज़ीद परेशानी में ना मुब्तला हो। इनको एक इस तरह की प्लानिंग करनी आपका क्या ख्याल है कि 2000 रुपये हुकूमत सब्सिडी दे रही है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत ने तो ऐलान कर दिया कि 2000 रुपये एक घराने को दिया जाएगा। देखिए, वो 2000 भी अब तक किसी खजूर के दरख्त में लटके हुए हैं, उनका भी अब तक पता नहीं चल रहा है कि वो मिलने नहीं मिलने। लेकिन ये मशवरा पता नहीं किस बेवकूफ़ ने इनको दे दिया कि आप 2-2000 इनको लोगों को दे दो, उनके मसाइल हल हो जाएंगे। देखें, 2-2000 देने से भी अरबों रुपए का ख़र्चा आ रहा है। इसी तरह अगर पेट्रोल के ऊपर सब्सिडी दी जाती तो इसी तरह इतने ही पैसों का ख़र्चा आता। तो जब पेट्रोल के ऊपर ही अगर सब्सिडी दे देते तो तमाम लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे थे, और मुझे नहीं लगता कि इन 2000 से तमाम लोग मुस्तफ़ीद होंगे। हुकूमत को चाहिए कि अच्छी प्लानिंग करे, मईशत को बेहतर करे, रोज़गार के मौके फ़राहम करें, ताकि अवाम मज़ीद ज़हनी खौफ का शिकार ना हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वहीद सर। अच्छा सर, हमें ये बताएं कि जैसे कि हमें तो ये पता है कि जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो भी काफ़ी हमें महंगाई का सामना करना पड़ रहा है उनके हवाले से भी, तो आपकी पिछली हुकूमत और इस हुकूमत के हवाले से कि क्या उनकी निस्बत ये हुकूमत सही काम कर रही है या फिर और ज़्यादा परेशान की बाइस बन रही है? सबके सामने ये है कि इस हुकूमत में जब से ये हुकूमत शुरू हुई है तो मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई भी बढ़ती जा रही है, पेट्रोल भी बढ़ता जा रहा है, और जो गरीब तबका जो गवर्नमेंट मुलाजिम होते हैं वो तो चलो उनकी तनख्वाह मिल जाती है उन्हें और गुजारा हो जाता है, तो जो होता है ना मज़दूर तबका वो बड़ा परेशान है, जिसकी दिहाड़ी भी नहीं बढ़ रही और कभी दिहाड़ी मिलती है और कभी नहीं मिलती।
तो अब एक दिहाड़ी में वो घी ले सकता है और कुछ नहीं ले सकता। उसके अलावा अगर कहीं सफ़र करता है तो ना पेट्रोल के पैसे हैं, पेट्रोल भी की रेट भी बढ़ चुके हैं, और बाकी बहुत से मसाइल हैं जो अब जिसकी नज़र गवर्नमेंट की नज़र अभी उतर पहुंची भी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जो 2000 का तस्करा किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से, क्या वो आपको मिले हैं? नहीं, अभी तक तो उसका कोई कहीं से उभरे नहीं है। 2000 तो कहाँ है? तो वो मुफ्ता इस्माइल साहब जो कह रहे हैं कि आपके तमाम मसाइल का हल ये 2000 हैं, तो आपकी क्या राय इस हवाले से? 2000 तो ये उसमें चले जाएंगे, बल्कि उसमें भी एक उसमें समंदर में कतरा डालने वाली बात है कि जितनी महंगाई हुई है, महंगाई जितनी हुई है 2000 पे क्या करते हैं वहाँ पे? हाँ, इसमें तो समंदर में कतरा फेंकने वाली बात है। बिल्कुल, बस यही खुलासा यही है कि तमाम आवाम महंगाई से परेशान है। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है भाई? अरसलान खींची। अच्छा अरसलान भाई, मुझे ये बताएं कि गुज़िश्ता जस्ट 3 ही हफ्तों में पेट्रोल की 84 रुपये कीमत बढ़ चुकी है। आपकी ज़ाती ज़िंदगी पर इसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं? जी बिल्कुल, महंगाई के असरात हुए हैं, क्यों नहीं हुए हैं। पेट्रोलियम जो मसनूआत हैं इसका बहुत ज़्यादा किरदार होता है ये महंगाई में। तो जिस तरह पिछले दिनों ये 34 रुपये 2-3 दिन पहले पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, तो इसमें किराए जो हैं ट्रांसपोर्ट के किराया, रिक्शा वाले, वो सारे तो मुख्तलिफ़ स्टूडेंट्स जो हैं, मैं बाकी सारे स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो मुख्तलिफ़ जगह से, मुख्तलिफ़ अजला से आते हैं दूर दूर से यहाँ पर ना यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। तो जैसा कि किराए बढ़े हैं, जहाँ 300 किराया था अब उन्होंने 600 कर दिया, जहाँ 1000 था वहाँ 2000 कर दिया है। तो स्टूडेंट का जो बजट होता है वो बहुत एक मखसूस होता है, और ज़ाहिर है वालिदैन कब तक और कहाँ तक करेंगे, जॉब्स तो वो नहीं अपॉर्चुनिटी है। तो महंगाई ने बहुत ज़्यादा हद तक कमर तोड़ दी है स्टूडेंट्स की भी और आम आवाम की भी। तो मैं यही कहूँगा कि महंगाई ने मेरी ही नहीं बाकी स्टूडेंट्स के भी जो ज़िंदगी अजीरन बना कर रखा। जी बिल्कुल, आपका कहना यह है कि जो 15 दिन बाद या फिर 2 हफ्ते बाद घर जाते थे, अब वो 1 वीक लेट करेंगे कि भाई घर जाएँ, इतना किराया भी महंगे हो चुके हैं। दूसरी बात यह कि यहाँ भी स्टे करें तो फिर बुनियादी ज़रूरतें भी महंगाई में आ चुकी हैं। जी बिल्कुल सही कहा कि पहले हम 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद घर जाते थे, लेकिन अब ये है कि इधर रहना है तो इधर भी इन्होंने जितने भी मैस वाले हो गए या बाकी जितने भी खाने पीने की अशिया हैं वो महंगी कर दी हैं। तो महंगाई ने तो जीना बहुत मुश्किल है। स्टूडेंट ख़ास तौर पर, क्योंकि ये ख़ुद डिपेंड नहीं कर रहे होते, ये वालिदैन के ऊपर होते हैं कि वो इनको अखराजात देते हैं। खुद वालिदैन बेचारे ज़्यादा ज़्यादा क्या करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाईजान? मोहम्मद अफजल रफ़ीक। अफजल रफ़ीक, स्टूडेंट हो? जी। अच्छा ये बताएं कि गुज़श्ता चंद दिनों में पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इस पर आपकी ज़ाती ज़िंदगी के अंदर क्या असरात मुरतब हुए हैं? हाँ, ये भाई देखें कि पहले ना पेट्रोल की कीमत इमरान खान के दौर में ना वैसे थी, मतलब 110 या 15 रुपये लीटर थी। तो जो आज है ना, आज तो 240 पे पहुँच गया है। इसलिए हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बुरा असर पड़ा है। तो सबसे पहले ये देखें कि हम किसी भी हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं ना, तो जब हम किसी भी यूनिवर्सिटी के पॉइंट जो बसेज़ हैं वो तो फ्री चलती हैं, जब हम उसमें बैठते हैं तो हमारे खौफ माइंड में ऐसा चल रहा था यार कहीं हमसे किराया ना ले लें। तो हमारे मतलब ये एक डिप्रेशन का शिकार है हम। इसलिए हमको सहूलत दी जाए, पेट्रोल भी सस्ता किया जाए और भी जो सहूलतें हैं वो भी हमें स्टूडेंट को दी जाएं। हम पढ़ने आते हैं, हमारे जो वालिदैन वो भी गरीब हैं, हमें पढ़ा रहे हैं, वो बहुत मुश्किल से हमारा गुजर बसर हो रहा है। मतलब वो हमसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मेरा बेटा कुछ ना कुछ करेगा, स्टूडेंट जो आप पढ़ रहे हैं ना। तो इसीलिए जो अब की हुकूमत है इससे हमें कुछ नहीं फ़ायदा पहुंच रहा कि हम किस तरह अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं और स्टडी करें, किस तरह हम अपने फ्यूचर को, मुस्तकबिल को आसान बनाएं। जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारे साथ स्टूडेंट थे, उनका कहना था कि महंगाई को हुकूमत को चाहिए कि कंट्रोल करे, स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही हैं।